بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خرد و نوش کی اشیاء خرید لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نمایاں اور صاف شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے۔ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گمسم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹنے لگے اور کپ کپی تاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کی طرح تھا اور نیچے والا دھڑ آدمی جیسا۔ لیکن وہ انسانی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گمسم بے سد کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے جملہ حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ پر اسرار جسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھو گے۔ تب لکڑہارا سنتے ہی چوکنا ہو گیا اور یکا یک بول اٹھا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پراسرار مجسم نے کہا، میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج اور شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا۔ لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ کرو گے اور غریب اور بے سہارا لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیما کے بعد اس پراسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کوسنے لگی۔ لکڑہارا جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے پان کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو، ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھرل میں ڈال کر کوٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آواز لگانے لگا، ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے مرض کا شرط یا علاج ہے، اپنا مرض بتائیں، مجھ سے دوا لیں اور شفا یاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آواز لگاتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اس کی بیٹی کے پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا، میری یہ دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکما بھی کرنے سے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا خاک کم کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پراعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، جس پر سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا
और बुढ़िया ने शुक्रिया के साथ 3 रुपए अदा कर दिए। लोगों में उसका चर्चा आम हो गया। जौक दर जौक मरीज आते और सस्ता इलाज करवाते और बाकी लोगों में चर्चा आम होता गया। जूं जूं लकड़हारे की दवा मशहूर होती गई, लोग ज्यादा आने लगे। लकड़हारा रोजाना वक्त निकाल कर जंगल जाता और हस्बे जरूरत उसी दरख्त के पत्ते और दीगर जड़ी बूटियां लाता और घर में पीस कर दवा तैयार करने के बाद मरीजों का इलाज करता। देखते ही देखते लकड़हारा अमीर होने लगा और अब तो गरीब लोगों की माली इमदाद भी करने लगा। एक रोज एक खूबरू जवान लकड़खारे के पास दवा लेने आया। लकड़खारे ने हस्बे मामूल बहुत कम कीमत पर उसे दवा दी तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? लकड़हारा उसे तजस्सुस से देखने लगा लेकिन उसे पहचान नहीं पाया और कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने तुम्हें इस दरख्त से मुतारिफ करवाया था, जिसकी आज तुम दवा बनाकर बेचते हो। वो मजीद बोला कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ईमानदारी से इस काम को शुरू किया है और लोगों से पैसे भी बहुत कम लेते हो। लकड़हारा हैरान था कि इसकी तो अजीबोगरीब, डरावनी और पुरस्कार शक्ल थी और आज आम इंसान जैसा खूबसूरत जवान है। लकड़हारे ने दरियाफ्त किया कि पहली मुलाकात में आपकी शक्ल डरावनी क्यों थी? वो आदमी हंसा और बताने लगा कि वो दरअसल जन्नत नगर का शहजादा है। उसने आगे बताया कि वो और उसका भाई गेंद से खेल रहे थे कि हमारी गेंद झाड़ियों में गिर गई और जब वो उसे लेने गया तो वहां एक बुजुर्ग बैठे नजर आए जो अपनी इबादत में मसरूफ थे। दरअसल हमारी गेंद गलती से उनको जा लगी जिससे उनकी इबादत में खलल आया था। मैं तो बच्चा था और बहुत शरारती भी था। गेंद लेने गया तो उन बुजुर्गों की नागवारी पर मैं बदतमीजी से पेश आया और साथ ही उन्हें ठोकर भी मार दी। शक्ल बिगड़ने के बाद मैं इंतहाई परेशानी के आलम में उनसे माफी तलब करने लगा, लेकिन बुजुर्ग इंसान ने एक शर्त रखी कि इसका हल तभी मुमकिन है जब तुम अच्छाई बांटते रहो और मखलूक तुमसे खाइफ ना हो, और कोई ऐसा अच्छा काम करो जिससे मखलूक मुस्तफीद हो। मुझे उस दरख्त के बारे में अपने अजदाद के तहकीकी मवाद से मालूम हुआ था कि इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। कोई इंसान मेरे करीब ही नहीं ठहरता था। मैं ये अच्छा काम करके अपनी सजा का मुदावा कर सकता। जो भी मुझे देखता डर कर भाग खड़ा होता। मैं इस सजा की कैद में बरसों गुजार दिए, तब जाकर तुमसे मेरी मुलाकात हुई और यूं तुम्हारी ईमानदारी की वजह से इस बद्दुआ का असर खत्म हुआ और दोबारा मेरी इंसानी शक्ल बहाल हुई। इसके साथ ही वो तसलसल में बोला, अब मुझे इजाजत दो। ये कहकर वो रुखसत हो गया। लकड़हारा अपनी ईमानदारी की वजह से अमीर तर होता गया और लोगों का बहुत कलील से पैसों में इलाज करता रहा और ऐशो इशरत उसके पांव चूमने लगी। तब से लकड़हारे की बीवी भी लकड़हारे के साथ खुश रहने लगी और उसको इज्जत से पुकारने लगी। प्यारे दोस्तों, हकीकत है कि ईमानदारी का सिला बहुत ही मीठा होता है। ईमानदारी का सिला क्या होता है, आइए इस हवाले से एक और कहानी भी आपको सुनाते हैं। कहते हैं रेलगाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा थी। सख्त सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। रात गहरी और सर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इरफान इस सर्द रात में अपने ख्यालात में उलझा हुआ मंजिल मकसूद की जानिब गामजन था। आज उसे रह रहकर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था, जिसे वो रोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था। इरफान एक शरीफ खानदान का चश्म चराग था। उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन इरफान स्कूल से वापस घर आया तो घर पर एक बुरी खबर उसकी मुंतजर थी। उसका बाप आज उन दोनों को छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिला था। इरफान की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। खुद इरफान की हालत भी माँ से मुख्तलिफ न थी। इरफान को अपने बाप की मौत का बेहद दुख था, लेकिन सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा न था। बाप की मौत के बाद इरफान के घर के हालात भी खराब हो गए थे, क्योंकि जब कोई कमाने वाला ही ना हो तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इरफान एक बाज़मीर नौजवान था। उससे यह बर्दाश्त न हो सका कि उसके होते हुए बाद फाकों तक पहुंचे, इसलिए इरफान ने अपने शहर में काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिर तंग आकर उसने अपनी माँ से दूसरे शहर जाने की इजाजत मांगी। आखिरकार इरफान के इसरार पर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे इजाजत दे दी और आज वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ दूसरे शहर जा रहा था। टिकट दिखाओ। टिकट चेकर की करख्त आवाज ने उसके ख्याल का तसलसल तोड़ दिया। इरफान ने फौरन टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया। टिकट चेकर ने टिकट देखकर इरफान को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। इरफान ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ गया और इरफान अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे हवा का एक तेज झोंका लगा, जिससे उसका जिस्म काम कर रह गया।
रात अभी काफी बाकी थी, इसलिए इरफान ने सोचा सुबह होने तक स्टेशन पर ही सोया जाए। अभी वो सोने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी। इरफान ने फौरन वो पर्स उठा लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर बहुत से रुपए थे। इरफान ने जब तमाम पैसे पर्स से निकाले तो पर्स के अंदर से एक शनाख्ती कार्ड में मिला। इरफान ने शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस देखा तो वो करीबी शहर का था। इरफान ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ये पैसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद इस शहर को जाने वाली गाड़ी आ गई। इरफान उस गाड़ी पर सवार हो गया। बहुत जल्द उस शहर का स्टेशन आ गया। इरफान गाड़ी से उतरा और मकान तलाश करने लगा। सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाने में मसरूफ था। कुछ देर बाद इरफान एक मकान के सामने खड़ा था। मकान एक बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया था। इरफान ने कॉल बेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशपोश नौजवान बाहर निकला। इरफान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। शनाख्ती कार्ड पर उसी शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। इरफान ने सारी सूरत हाल उसे बताई और उसके पैसे और शनाख्ती कार्ड वापस कर दिए। वो शख्स इरफान की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। इरफान को अपने साथ अंदर ले गया। उस शख्स ने इरफान की खूब खातर मदारत की और दूसरे शहर आने की वजह पूछी। ये नौजवान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। इरफान ने उसे बताया कि वो दूसरे शहर नौकरी की तलाश में आया है। उस शख्स ने इरफान की ईमानदारी को देखते हुए फौरन अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रख लिया। इरफान भी बहुत खुश हुआ कि उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम पर चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। हम सब बचपन से एक लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि आया हम इन कहानियों को सुनने के बाद कितनी सच्चाई और ईमानदारी से काम लेते हैं। आपकी याद दहानी के लिए ये कहानी भी आपको सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक रोज जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी खो गई। उसके पास इतने पैसे न थे कि दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लेता। उसने सारे जंगल में कुल्हाड़ी ढूंढी, लेकिन कहीं न मिली। थक हार कर वो रोने लगा। अचानक दरख्तों के पीछे से एक जिन निकला। उसने कहा, क्या बात है मियां लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने रोते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, सब जगह तलाश कर लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। तुम जिन हो, खुदा के वास्ते कहीं से ढूंढ कर ला दो। ये सुनकर जिन लकड़हारे की निगाहों से ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद उसके पास दोबारा आया। उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से कहा, लो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाया हूं। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखकर कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, वो तो लोहे की थी। जिन फिर गायब हो गया और अब वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने कहा, लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं, ये चांदी की है, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। लकड़हारे ने कहा। ये सुनकर जिन फिर गायब हो गया। जब वो लकड़हारे के पास दोबारा वापस आया तो उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। ये कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारा खुशी से चीखा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी कुल्हाड़ी मिल गई। जिन बोला, तुम बहुत ईमानदार शख्स हो, मैं ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारा इनाम है। लकड़हारे ने जिन से तीनों कुल्हाड़ियां ले ली और खुशी खुशी घर चला गया। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि ईमानदारी और सच्चाई का सिला हमेशा मीठा होता है और इंसान झूठ और फ्रॉड से इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता जितना वो सच्चाई और ईमानदारी से हासिल कर सकता है। ईमानदारी से हासिल होने वाला सिला पायदार और हमेशा के लिए होता है, जबकि झूठ और फ्रॉड से हासिल की गई चीज बहुत जल्द हाथ से चली जाती है। जैसा कि इरफान की कहानी में आपने मुलाहिजा किया कि अगर इरफान बटवे वाले पैसे रख लेता तो वो इन पैसों को कब तक इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी से काम लिया और बटवा मालिक तक पहुंचाया तो उसको मुलाजिमत मिल गई। हमें भी चाहिए कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।